ৰিয়েলিটিৰ নতুন ষ্টুডিঅ' ZJ মিউজিক ষ্টুডিঅ'। আৰু আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে অকল গছ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ। মই ষ্টুডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে গছবিলাক লগাই লৈছোঁ। আৰু এই গোটেই বছৰটো আমি ঘৰৰ ফল মূল খাইছোঁ, চব্জি খাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ। আৰু এটা সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ পৰিৱেশ, ঘৰটো মই গ্ৰীণ ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে যিমান পাৰি ষ্টুডিঅ'টো। আৰু সম্প্ৰতি এটা হুলস্থুল এটা চলি আছে গছ কটাক লৈ। বিভিন্ন জেগাত দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি দিবলগীয়া হৈছে, ৰাস্তা বনিছে, তাত কিবা বেলেগ বস্তু বনিছে। গতিকে আৰু চৰকাৰে কৈছে যে আমি গছ কাটিছোঁ যদিও আমি বিভিন্ন ঠাইত গছ ৰুইছোঁ তাক বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া কিছুমান জেগা আছে, যেনে ৰিচেণ্টলি যিটো হুলস্থুল চলি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ সেই পুৰণা গছখিনিক লৈ পেলাই। এতিয়া সেই গছখিনি হৈছে গোটেই দীঘলী পুখুৰীটোৰ সৌন্দৰ্য। এতিয়া সেইখিনি গছ কাটি যদি বেলেগ জেগাত গছ ৰুৱেও সেই দীঘলী পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যটো ঘূৰি আহিবনে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰিচেণ্টলি দেখিলোঁ আগৰতলাত পুৰণা গছ নাকাটিবৰ কাৰণে ফ্লাইঅভাৰৰ পেটাৰ্ণ সলনি কৰা হৈছে। গতিকে সেইটো বস্তু আমাৰ ইয়াতো সম্ভৱ মই ভাবোঁ। গতিকে মই চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ যে যদি কিবা অপশ্যন আছে তেওঁলোকে সেই অপশ্যন গ্ৰহণ কৰক, যাতে সেই গছকেইজোপা দীঘলী পুখুৰী আমি বচাব পাৰোঁ। সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু এই যিটো আমাৰ বিপ্লৱ চলিছে গছ সংৰক্ষণ, গছ বচোৱাৰ, তাত সকলোৱে সহযোগ কৰক। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই। কমলা শইকীয়া, তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালোঁ, খৰচা হৈ গ'ল। আৰু ধৰ লগ পাম বুলি আহিলোঁ আৰু খৰচা হৈ গ'ল। ড'ন্ট মাইণ্ড গ'ল আৰু আহিলোঁ, লগ পালোঁ যে মিলিলোঁ ন। শুকুৰ আলহামদুলিল্লাহ হ'ল ন ভাইটি। বেয়া চেয়া পইচা নেকি? কম ফিটিং হৈ আছোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু লগ পাম বুলি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। ভাতটো খাই যাব, ভাতটো কেলে সদায় খাই, ভাত মাংস এভৰিথিং খাই ভাল লাগিল দেই। 70 বছৰ ভাল লাগিল দেই, 70 বছৰ মোৰ কিন্তু তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ। মোৰ গাঁও বেচেৰা মুছলিম গাঁও, মোৰ নাম কমলা শইকীয়া। কোনফালে আছে? হাস্পিটেলৰ ওচৰত কমলা শইকীয়া। তোমাক লগ পাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু খালোঁ, খৰচা হৈ গ'ল। আৰু ধৰ লগ পাম বুলি আহিলোঁ আৰু খৰচা হৈ গ'ল। ড'ন্ট মাইণ্ড গ'ল আৰু আহিলোঁ, লগ পালোঁ যে মিলিলোঁ ন। শুকুৰ আলহামদুলিল্লাহ হ'ল ন ভাইটি। বেয়া চেয়া পইচা নেকি? কম ফিটিং হৈ আছোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু লগ পাম বুলি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। ভাতটো খাই যাব, ভাতটো কেলে সদায় খাই। Sana, sana.
বাচ্চাটা ভাল হয় দাদা হ্যাঁ মজা দিছে এইবোৰ নাহৰ পাত দিছে নাহৰ পাত আউখিলা আছে নিশ্চয় আউখিলা আছে তিনিখিলা নাহৰ পাত চাৰাচোন ভৰাই দিছে চাৰাচোন ভৰাই দিছে চব I'll get a doctorate in my life because I was a dropout from BSc Bibura College. I was studying there. I didn't complete because my ambition was different. My dream was different. First of all, thank you very much for this honor. Thank you USTM, Mr. Hawk and all our special guests present here. And I never thought I'll get a doctorate in my life because I was a dropout from BSc Bibura College. I was studying there. I didn't complete because my ambition was different. My dream was different. First of all, thank you very much for this honor. मानो जैसे किसी ने संगीत की उस डोर को काट दिया था जो असम में हर व्यक्ति को जोड़ रही थी और इसीलिए जुबीन की आखिरी यात्रा सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई नारे नहीं थे, एक ऐसी क्रांति जहां पर कोई झंडा नहीं था, बस लोगों की आंखों में आंसू थे। ना कोई मंच था, ना प्रचार, बस दिल था जो टूटा हुआ था। जुबिन की अंतिम यात्रा में हर कोई आया था, लेकिन हैरानी की कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा था। कोई किसी की जात नहीं देख रहा था, कोई किसी की भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा था, किसी को किसी के धर्म से मतलब नहीं था। जुबिन की अंतिम यात्रा में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा। हर कोई वहां जो मौजूद था वो उस भीड़ में कह रहा था, जुबिन हमारा था। और हमारा कितना बड़ा शब्द है, यह आज के दौर में समझने वाली चीज है। इस शब्द में मजहब से बड़ा रिश्ता है, राजनीति से गहरी डोर है। हमारे शब्द का मतलब होता है हमारा अपना, वो जो हमारा हिस्सा है। और जुबीन के जनाजे की तस्वीरें चीख चीख कर कहती हैं कि जुबीन सबके थे, सबके। असम के मुख्यमंत्री पहुंचे, नेता की तरह नहीं, न किसी कुर्सी पर बैठे शख्स की तरह, वो एक श्रोता की तरह है, एक फैन की तरह। उन्होंने जुबीन की चिता की जमीन से मिट्टी उठाई, मानो जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो आंसू नकली नहीं थे। वो उस दर्द का हिस्सा थे जो हर घर की चौखट पर उस दिन बिखरा पड़ा था। और जब ये तस्वीरें आई तो जहन में ख्याल आया कि क्या कभी हमने आपने किसी सरकार को इतना इंसानी होते देखा है, इतना छोटा होकर, इतना नम्र होकर। और इसी वजह से जुबीन बहुत बड़े हो गए। उस विदाई के बाद सिर्फ असम नहीं रोया था, देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खामोश बैठे थे। टीवी की स्क्रीन पर जब जुबीन की अंतिम विदाई में वो जो जनसैलाब उमड़ा था, उसे कभी टीवी पर, कभी अखबारों पर लोगों ने देखा तो सबके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जुबीन कौन था जिसे इतना प्यार मिल गया। क्योंकि असम के बाहर कई ऐसे थे जो जुबीन को सिर्फ या अली या दिल तू ही बता से जानते थे। और जब असम में जुबीन के लिए वो जनसैलाब दिख रहा था तो उनके जहन में सवाल था कि क्यों असम के हर घर की चौखट पर शोक पसरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि एक गायक की मौत किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी हीरो से, किसी महापुरुष से बड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर शहर में लोगों ने जुबीन की तस्वीरें देखी। लोग हैरान थे कि एक कलाकार के लिए कैसे जन समुद्र उमड़ पड़ा था। ज्यादातर लोग असम के बाहर, खासतौर पर हिंदी बोलने वाले राज्यों में कह रहे थे कि जुबीन का नाम सुना था हमने, हम जानते थे कि वो असम से है, लेकिन जुबीन का इतना बड़ा सर।
किसी ने पूछा कि किसी गायक को इतना अपनापन कैसे मिल सकता है, और तब जवाब खुद असम ने दिया। असम ने बताया कि जुबीन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम के अपने थे, वो असम के लोगों के रिश्ते में थे। वो धुन थे जिस पर असम ने बचपन जिया था, जवानी बिताई थी और अपने दर्द को सहा था। जुबीन वो आवाज थे जिसने दूरदराज गांव के बच्चे को एहसास कराया था कि वो अकेला नहीं है। वो आत्मा थे जिसने संगीत को असम में भाषा से ऊपर, मजहब से ऊपर और सियासत से ऊपर खड़ा कर दिया था। देश के बाकी हिस्सों ने तब समझा कि जुबीन एक नाम नहीं, असम के लोगों के लिए वो एक भावना थी जो असम के हर दिल का हिस्सा रही, हर त्योहार के गीत रही, हर आंगन की गूंज रही। और इसीलिए शायद असम ने खुलकर कहा कि एक कलाकार नहीं खोया है, उन्होंने अपना खोया है। और सच यही था। जुबिन को जानने के लिए उनके गानों को सुनना जरूरी नहीं था। जुबिन को जानने के लिए बस असम की भीगी आंखें देख लेना काफी था, क्योंकि प्यार का पैमाना गानों से नहीं, लोगों के आंसुओं से तय होता है, जनाजे की भीड़ से तय होता है। और वो जो भीड़ हजारों की संख्या में आई थी पर खामोश थी, वो ये बता रही थी कि जुबिन की हैसियत क्या थी। जुबिन के जनाजे पर मानो समय ठहर सा गया था। सफेद फूलों से ढके शव पर सबकी निगाहें जमी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था कि यही वो इंसान है जिसने मेरी जिंदगी का पहला गीत गुनगुनाया था। भीड़ में कई बच्चे भी थे, हाथों में पोस्टर लिए। किसी ने अलविदा जुबीन लिखा था, किसी ने गुड बाय जुबीन लिखा था। इनमें कई बच्चे शायद ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें मौत का मतलब तक नहीं पता था, पर उन्हें यह एहसास हो रहा था, यह महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा जो कईयों को प्यारा था, कोई ऐसा जो कईयों का सहारा था, वो चला गया। भीड़ में कोई बूढ़ा भी था जो कांपते हाथों में रुमाल, आंखों में समंदर लिए बार बार बुदबुदा रहा था कि हे ईश्वर, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन फिर चिता जली। आसमान में तब सिर्फ धुआं नहीं उठा, उस धुएं में वो बहुत सारे गीत उठे जो अब कभी जुबीन की आवाज में सुनाई नहीं पड़ेगी। मानो हर लपट में एक याद थी, हर राख में एक धुन थी, लेकिन उस पर लगा कि मौत भी हार गई है। और यह एहसास इसलिए था क्योंकि मौत को भी यह एहसास हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि मौत भी उसके सामने बौनी नजर आने लगी। फिर चिता बुझी, पर आंखें नहीं बुझी। आंसुओं की आग जलती रही और उसी राख से, उसी आंसू से जुबीन और बड़े हो गए। जुबीन अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, जुबीन हवा बन गए हर सांस में, वो नाम बन गए हर दुआ में, वो धड़कन बन गए हर दिल में। रिक्शा वाले की रेडियो पर उनका गीत धीमे धीमे बज रहा है, सड़क किनारे रोती मां के होठों पर उसका नाम आ रहा है, और कोई नौजवान अपने फोन पर उसका गाना सुनते सुनते आज असम में अचानक फपक फपक कर रो पड़ा है। जुबीन की मौत नहीं हुई है, जुबीन अब हर जगह है, अपनी विरासत में, वो विरासत जो उनकी आवाज में छूट गई है। उनका संगीत अब सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि असम की रगों में दौड़ता खून है। उनकी याद अब दर्द नहीं है, बल्कि असम के लोगों की ताकत है। और वो जो शुरू में हमने कहा था कि शोहरत तो जनाजे पर मिलती है, लेकिन जुबीन को सिर्फ शोहरत नहीं मिली, उन्हें मिला अमृत। उन्हें मिला वो प्यार जो किसी अवार्ड से बड़ा है, उन्हें मिला वो सम्मान जो शायद अब कभी नहीं मिटेगा। और इसीलिए जब कोई भी आली गाएगा या कहीं पर यह गाना सुनता हुआ मिल जाएगा, जब कभी किसी मेला त्योहार में लोग उनके गानों पर थिरकेंगे, जब कोई अकेला इंसान उनके गीत में अपने दर्द को ढूंढेगा, तब जुबिन लौट आएंगे, हर बार, हर जगह। क्योंकि अब जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं है, वो सांस की तरह बन चुके हैं, एहसास बन चुके हैं,
और इसीलिए आज हम कहेंगे अलविदा जुबिन, पर तुम कहीं गए नहीं हो, तुम हमारे साथ हो हमेशा। संपूर्ण असम वासियों की तरफ से जुबिन गर्ग को हमारी श्रद्धांजलि। ओम शांति। অলপমান বেলেগ, মই উচ্চ নিশ্চ ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমাতকৈ পৃথক, বহল পৃথিৱীৰ পৰা পৃথক। মোৰ ব্যৱহাৰ আৰু জুবিনৰ ব্যৱহাৰ স্বাভাৱিকভাৱে একে হ'ব নোৱাৰে। তাক আমি ভালো পাব নালাগে বা তাক আমি সমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। জুবিনৰ প্ৰতিভা আমাৰ সম্পদ, জুবিনৰ সৃষ্টি আমাৰ সম্পদ, জুবিনৰ গান আমাৰ সম্পদ। জুবিনৰ গানে বহু দিনলৈ অসমীয়াক আলোড়িত কৰি ৰাখিব। জুবিনৰ গানে অসমীয়াক বহু দিনলৈ প্ৰেৰণা যোগাই যাব। জুবিনৰ গান অসমীয়া জাতিৰ বাবে সাহস হৈ থাকক। জুবিনৰ গান মানুহৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিফলনৰ এক মূৰ্ত প্ৰতীক হৈ ৰওক। জুবিনে দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰি অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰি ৰাখক। বঁটা গ্ৰহণ কৰি নিউজ লাইভ পৰিয়ালক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। নিউজ লাইভক অভিনন্দন 16 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে, আৰু মৰমৰ ৰিণুকি ভূঞা শৰ্মা, তেওঁক ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ দীৰ্ঘ জীৱন জুবিনৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ। যেতিয়া ক্ৰিয়েটিভিটি এজন মানুহৰ জীৱনৰ পণ হয়, আমাৰ দৰে ব্যৱহাৰ তেওঁৰ পৰা আশা কৰাটো অনুচিত। কেতিয়াবা কেতিয়াবা জুবিনৰ ব্যৱহাৰ, জুবিনৰ কথা বতৰাই মানুহক কয় যে জুবিনে এইটো কিয় কৰিছে। আমি নকৰা কাম জুবিনে কৰিব, কাৰণ জুবিন শিল্পী। ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনক প্ৰশ্ন আমি এইকাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ হি ৱাজ গাইডেড বাই ক্ৰিয়েটিভিটি। জুবিনৰ সৃষ্টিয়ে জুবিনৰ জীৱনক গতি দিয়ে। কৰবাত সৃষ্টিৰ লগত একাত্ম হ'ব যাওঁতে আমাৰ লগত ব্যৱহাৰ নিমিলা হৈ যায়। কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে ভগৱান শিৱই কিয় ভাং খায়, কিন্তু এইটো আমি বুজি নাপাওঁ যে অমৃত মন্থনত ভগৱান শিৱই বিষ পান কৰাৰো সাহস ৰাখে, যিটো আমাৰ নাই। যেতিয়া আমি নিজৰ লগত তুলনা কৰোঁ, কোনোবা এজন মানুহক বেলেগ বেলেগ লাগে, কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব যে সেই মানুহজন আমি নহয়। আমাতকৈ সেই মানুহজন অলপমান বেলেগ। মই উচ্চ নিশ্চ ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমাতকৈ পৃথক, বহল পৃথিৱীৰ পৰা পৃথক। মোৰ ব্যৱহাৰ আৰু জুবিনৰ ব্যৱহাৰ স্বাভাৱিকভাৱে একে হ'ব নোৱাৰে। তাক আমি ভালো পাব নালাগে বা তাক আমি সমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। জুবিনৰ প্ৰতিভা আমাৰ সম্পদ, জুবিনৰ সৃষ্টি আমাৰ সম্পদ, জুবিনৰ গান আমাৰ সম্পদ। জুবিনৰ গানে বহু দিনলৈ অসমীয়াক আলোড়িত কৰি ৰাখিব। জুবিনৰ গানে অসমীয়াক বহু দিনলৈ প্ৰেৰণা যোগাই যাব। জুবিনৰ গান অসমীয়া জাতিৰ বাবে সাহস হৈ থাকক। জুবিনৰ গান মানুহৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিফলনৰ এক মূৰ্ত প্ৰতীক হৈ ৰওক। জুবিনে দীৰ্ঘ জীৱন লাভ কৰি অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰি ৰাখক। বঁটা গ্ৰহণ কৰি নিউজ লাইভ পৰিয়ালক কৃতজ্ঞতা। আপোনালোকে মোক পইচা দিব নালাগে, মই যিখিনি গালো বছ। আই এম গোইং অফ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। বাট আই লাভ ইউ। মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ, মই আপোনালোকক ভাল নাপাওঁ। লেটছ গো, ইটছ ফিনিশ্ড। মই যি মন যায় মই সেইটোৱে গাম। প্ৰগ্ৰেম নকৰিব। You cannot dictate me. Dictate my understand. 25 বছৰ 16,000 গান মই গাইছো, আপুনি কোৱা নাই। এটা কথা কওঁ, মই একদম চিধা মানুহ। মোৰ কোনো মই কাকো খাতিৰ নকৰো পৃথিৱীৰ কথা।
আপোনালোকে মোক পইচা দিব নোৱাৰে মই যিখিনি গালো বছ আই এম গোইং অফ থেংক ইউ ভেৰি মাছ বাট আই লাভ ইউ মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ মই এওঁলোকক ভাল নাপাওঁ